funds for southern Indian states that now has reached Delhi. The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, along with his MLAs and MPs, are now staging a protest at Jantar Mantar in the national capital, a day after the Siddaramaiah government took the fund fight to the streets of the national capital. With the same motto, Pinarayi Vijayan will protest over the centre's alleged economic discrimination against Kerala. The Chief Minister of Kerala also said that the centre is torturing non-BJP ruled states. Meanwhile, BJP hit back, saying that Kerala has the worst fiscal management with government expenditure rising. Centre also alleged that Kerala is using borrowed funds to pay off the state's expenses. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിലെ ഗ്രാന്റ് സുപ്രധാനമാണ്. സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലാണ് മിക്ക കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികളുടെ സൂക്ഷ്മഘടന വരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ മന്ത്രാലയങ്ങളാണ്. ഇത് തന്നെ ഫെഡറലിസത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിംഗ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ്. Prime Minister Narendra Modi came down heavily on the Congress during the Rajya Sabha speech, accusing the Grand Old Party of dividing the country on the basis of language. Listen in. देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग इसके तराजू पर The Prime Minister left no stone unturned to attack the Congress in his fiery speech at Rajya Sabha. He accused the Grand Old Party of being anti-development, anti-reservation and anti-backward classes. Without naming Rahul Gandhi, he took a jibe at the Congress and claimed that the party failed multiple times to launch Yuvraj, but he's not ready to start. He's also held the Congress responsible for spreading negativity by creating false narratives around PSUs like HAL and LIC. The Prime Minister declared that it was the Congress that put India in a financial mess and that his government pulled India out of problems created by the UPA. He's also took this as an opportunity to hit out at former Prime Minister Jawaharlal Nehru. In Rajya Sabha, read out Nehru's letter in which the former Prime Minister had said that he is strongly against reservations, especially in the employment sector. युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना, उस दिन नहीं थे। मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में
सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे भाषण नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। कांग्रेस ने क्या किया, फलाना फलाना, यही बातें वो बोल रहे थे। जिन्होंने दांडी मोर्चा यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी, उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और राष्ट्रभक्ति के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसा इन्होंने ही 14 2014 को ही इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, ऐसा उनका मानना है। अनगिनत इतनी झूठी बातें उन्होंने कही। हम खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। After Ayodhya